آج کا یہ دن پھر خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں بخشا، ایک خاص دن ہے جس کا نام راکھ کا بدھ ہے۔ آج اسی کے تعلق سے ہم سنیں گے، سیکھیں گے کہ راکھ کا بدھ کیوں کہا جاتا ہے۔ شکر گزار ہے کہ خدا نے پھر ہماری زندگی میں یہ دن بخشا۔ دعا کریں کہ سال 2021 کے سال ہم سب کے لیے برکت، خوشی اور راحت اور تسلی کا سبب ٹھہرے، تاکہ ہم روحانی طور پر بھی ترقی پائیں۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، میں سے چند الفاظ میں۔ خدا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں یسوع مسیح، دل کی گہرائیوں سے تیری محبت شفقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے رول ماڈل بنا، ہمیں خوبصورت نمونہ بخش دیا خداوند، تاکہ ہم بھی خداوند بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی حلیمی فروتنی کے ساتھ خداوند تیری حضوری میں آئے، ریاست کریں اور اپنے آپ کو تیری حضوری میں پیش کر دیں، تاکہ ہم خداوند اور بہتر طور سے تیری حضوری میں آ سکیں، تیرے ساتھ چل سکیں۔ خداوند اس پورے مہینہ میں بلکہ 40 دن خداوند جو دن آتے ہیں، ہر روز ہم تیری حضوری میں اسی طریقے سے آتے رہیں اور اپنے آپ کو تیری حضوری میں پیش کرتے رہیں۔ ہمیں بڑی فروتنی بخش دے، لیوی اور انکساری کی روح بخش دے خداوند، کہ ہم خداوند اپنے سے دوسروں کو بہتر سمجھیں اور تیری حضوری میں خداوند ہمیشہ اپنے آپ کو جھکاتے رہیں اور تجھ میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند سینٹ جانس کی کلیسیا کے لیے، ساری کلیسیا کے لیے، سارے لوگوں کے لیے جو تیری حضوری میں آئے ہیں، جتنے لوگ خداوند ریاضت کے ساتھ، روزہ کے ساتھ، اپنی فروتنی کے ساتھ جنہوں نے اپنے آپ کو خالی کیا اور اپنی زندگی تیری حضوری میں رکھی اور تجھ کو خداوند اپنی حضوری میں آنے کا خداوند تو نے ان کو فضل دیا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، چاہتی ہوں جہاں جہاں بھی تیرے لوگ تیری حضوری میں آ چکے ہیں، عبادتیں شروع ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، سب کو تیری حضوری میں رکھتی ہوں۔ تیرے 11 مسا کو چاہتی ہوں خدا اس پوری پنڈال پر تیرا پاک روح چھایا رہے، نگہبان فرشتوں کا پہرا باؤنڈری وال پر لگا رہے، تاکہ تیرے تمام لوگ بڑی ڈیمونسٹریشن کے ساتھ، بڑی خداوند حلیمی کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور پوری وفاداری کے ساتھ اور دل سے اور دل کی سچائیوں سے خدا تیرے ساتھ چل سکے، تیری عبادت کر سکے۔ خدا کی کو بلیس کر، برکت دے رہا، کی ساری خوشیاں اور بلیسنگ کو ہر ایک کی جھولیوں میں بھر دینا۔ خدا ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہ لوٹے، بل اپنی زندگیاں، اپنی روح کو اور اپنی جھولیوں کو پاک روح کی پھلوں سے اور خدا برکتوں سے مالا مال کر کے چھائیں اور برکت چاہیں۔ ایک دوسروں کے لیے بھی ہم بلیسنگ کر خدا باعث ٹھہر سکے۔ پادری صاحب کے ساتھ ہو، ان کے سارے گھرانے کو برکت دے، وائٹ کے تمام تر بچوں کو کثرت کی برکت دے، تاکہ روح اور سچائی کے ساتھ ہم سب مل کر ان کے ساتھ مل کر تیری پرستش کر سکیں۔ سازوں وازوں پر تیرا گہرا نشہ چھایا رہے خدا، ہم سب کو کثرت کی برکت دے، اور جو کچھ سیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں عمل پیرا کریں خدا، اور تیرے نام کو جلال دیں اور تیرے نام کی ستائش اب دلواد ہماری زندگیوں سے جاری ہے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آمین۔ گیت نمبر 179 کلوے دے سہارے پاپی بچ دے سارے، اتھے سولی تو چڑیا ڈاڈا جریا، مل سادہ تو بھریا دے کے خون پیارے۔
सीजन, बाहर का मौसम, खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी दुखों के दिन का आगाज हो चुका है। स्वयं हम भी अपने आप को मुकम्मल तौर पे उसके दुखों में शामिल करते हुए अपनी शख्सी, खानदानी, कलीसिया, रूहानी जिंदगी के लिए खुदा उनसे दुआ करें। उन लोगों को याद करें जो इन दिनों मुश्किल में हैं। मिसेस एस के दास वो अमेरिका में हैं और बीमार हैं, बेड पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं। खुदा मदद करें। और भी जो लोग कमजोरी की हालत में उनके लिए दुआ करें। मिस्टर नई बरकत के लिए, पेरेंट्स के लिए, मास्टर विलियम जॉन्स और दूसरे तमाम अजीजों के लिए जो कमजोरी की हालत में है, खुदा उनसे रहम मांगे। कोई भी दुआ कर सकता है चलो पास में। कदूस कदूस में जिंदा सोने बाप, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरी चौकी है। तो हमें दिल की गहराई से प्यार करते, तू प्यार का सागर है। तो अपने प्यार के सागर में बोले तू हमें पढ़ता ले, हम तेरे में काम होते ये रात दौड़ी थी चोरी तो की करे, सारा जो बातें नाम मिले है। यीशु नासरी जी तू सच्चा आसमानी बाप है। हम सच्चे दिल से तुम्हें कबूल करें, अपने पाक लहू से में बसा कर। जितने तेरे घर में लोग तेरे प्यार करते हुए घर में पहुंच गए हैं, उन सबको अपने पाक लहू से ब्रश कर। इनकी घर की सारी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को दूर कर। अपनी रहमत कर, अपना करम कर, अपना फजल कर। जितने लोग अस्पतालों में, घरों में, जहाँ में बुरुले बुरुग में हैं, बीमार हैं, उनको सेहत याब कर। उनकी सारी कमजोरी शाजोरी को बदल दे, उन पर रहम कर दे, उन पर करम कर दे, उन पर फजल कर दे। तू बादशाह का बादशाह, कादर और रहीम सच्चा स्वामी बाप है। तू बहुत से करने वाला है, तू सच्चा स्वामी बाप है। उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और सारे जो बातें नाम मिले। आइए सुनासी जी जो और जिससे बेरोजगार उनको रोक दे, जिनके रोज लगे हैं उनके कारोबार में बरकत दे। आखिर जो दुखी हैं उनको दुखों को दूर कर, बेवों के साथ हो, उनकी घर की सारी जरूरतों को अपने लाइफ से पूरा कर। अपनी रहमत कर, अपना पाक कलाम तुझसे मांग लेते हैं। इस पाक कलाम में तेरी बड़ी पावर है, तेरे खून में बड़ी पावर है। यीशु मसीह इस पाक कलाम से शेरों और दूर दूर तक तेरे नाम को फैला सके और तेरे नाम की जय जयकार कर सके और सारे सब बातें नाम मिले। मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आज शाम जो हमारी मसीह के लिए कलाम मुक़द्दस के दो हिस्से हैं। आज का पहला विर्द योएल नबी के सहीफे से होगा। आज का पहला विर्द पुराने नामत योएल नबी का सहीफा, दूसरा बाब 12वें से लेकर 17 तक। जो बाइबल आपके पास है, टेस्ट में जो पढ़ी है पुरानी बाइबल्स, सफा नंबर 857 857 पुरानी बाइबल में। और जो नई बाइबल है, नई बाइबल में सफा नंबर 1099 1099। हवाला जरूर निकालें। बहुत दफा इस हवाले को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन हर दफा जब भी आप इस कलाम को देखते हैं, पढ़ते हैं, आपके लिए एक नया मैसेज इसमें होता है। योएल नबी का सहीफा, दूसरा बाब 12वें से 17 तक। कोई पढ़ना चाहता है? चलिए भाई दाऊद। आज का दूसरा विर्द गीत के बाद हम सुनेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, छठा बाब 16 से 21, सफा नंबर 9 पुरानी बाइबल में और 10 नई बाइबल। नई बाइबल में सफा नंबर 10 पेज 10 मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, छठा बाब 16 से 21वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस की तिलावत फादिश मुशाहिद हमारे लिए करेंगे।
आज का दूसरा वित्त मत्ती की बात लिखी गई इंजील 6 बाब 16 से 21वीं आयत तक। मेरे हाथ में चंद एक जरूरी इशारात हैं। आज से लेंट रोजों के अय्याम खुदा यीशु मसीह के सलीबी सफर के दिन का आगाज हो चुका है। इबादत के बाद आप सबके लिए इंतजामिया ने इंतजाम किया है ताकि आप मिलकर रोजा खोल सकते हैं। जो लोग इस काम के लिए हदिया जान देना चाहते हैं वो सबको जरूर दें, और जो लोग आने वाले इतवार इबादत के फौरन बाद हम चर्च की तरफ से ट्रिप लेके जा रहे हैं कसूर, जहाँ पे बॉर्डर है गंडा सिंह बाबर, जो बॉर्डर है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की हालत है, जहाँ पे जो लोग देख चुके हैं उन्हें पता है, जो नहीं देख सके वो हमारे साथ जा सकते हैं ताकि आप इन जगहों को देख सकें। वाघा बॉर्डर दूसरी साइड पे है, ये जो गंडा सिंह बॉर्डर है ये कसूर के साथ 600 रुपये पर हेड हम ले रहे हैं। आने जाने का किराया है, खाना हम आपको देंगे। 12 बजे हम यहाँ से जाएंगे। जो लोग जाना चाहते हैं वो अपना नाम आज ही बाहर लिखवाएंगे और शनाख्ती कार्ड नंबर भी देंगे, क्योंकि आगे जाना है, प्रोटोकॉल पे जाएंगे। खुदा के लोग यहाँ 12 बजे इबादत के बाद संडे वाले दिन 21 तारीख को हम जाएंगे। जो लोग जाना चाहते हैं अपने नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर आज ही शाम को लिखवा दें ताकि हम उन्हीं के मुताबिक फिर जाने का इंतजाम करेंगे। उसके बाद ये पूरा चूंकि महीना है, 40 दिन है, 46 डेज बनते हैं। वैसे मैं कलाम में आपको बताऊंगा, उनमें फिर जितने संडे आते हैं उस दिन रोजा नहीं होता। तो इस सीजन में अगर आप चाहें, जैसे आज आप आए ना, बुध का दिन है, इतवार नहीं है ना, क्या दिन है? कितने लोग आ गए हैं? अगर आप हर जुमे की शाम आए, वादा करें, अहद करें, फिर हम रोजों के बाद जुमे की शाम को रखेंगे नहीं, तो फिर हम घरों में जाए। हम ऐलान कर देते हैं, हम फिर आपका इंतजार करते होते हैं यहाँ पे, फिर आप आते नहीं। जुमे की शाम हर जुमा ईस्टर से पहले तक लेंट सीजन में जुमे की इबादत शाम को 5 बजे अगर आप चाहें तो हम रख सकते हैं। अगर आप वादा करें कि आप आया करेंगे फिर इबादत होगी, वरना नहीं। क्यों जी? वादा करते हैं, देख लेना, कायम रहना। आपने मुझे खुशी होगी कि आप इन दिनों आए। बहुत शुक्रिया। अपने अपने लिए तालीम जाए। इसका मतलब ये है कि आपने अहद कर लिया है, आपने वादा कर लिया है। तो खुदा के साथ जो वादा करे वो तोड़ा नहीं जाता, तोड़े तो सजा मिलती है। ठीक है? हर जुमे की शाम चर्च में इबादत होगी। आपको लेंट के बारे में, रोजों के अय्याम के बारे में पैगाम दिए जाएंगे ताकि आप लोग अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी दुख में ढाल सकें और बरकत पाएं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ से। मैं कलाम थोड़ा ज्यादा सुना दूंगा। आज के दिन की अहमियत, ख़वातीन की इबादत जुमेरात की शाम 4 बजे, जुमेरात की शाम 4 बजे होगी। रफ़ाक़त ख़वातीन, तमाम जितनी ख़वातीन है सारी रफ़ाक़त ख़वातीन ही है, चंद नहीं है होती है रफ़ाक़त ख़वातीन कि जो आदमी है वही होती है। आप कुछ न दिया करें चर्च को, कुछ न दिया करें, चर्च आ जाएगा, क्योंकि गरीब लोग हैं, दे नहीं सकते, ले सकते हैं। ठीक है? कुछ न दिया करें चर्च को, बड़ा मेहरबानी, लेकिन आ जाया करें, काम समझिए करें। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ से कलाम मुक़द्दस में यूं बरकूम है। माइक दे
रुकें। कान मुकद्दस से हमारी गंगा की आज का पहला है वाला यह बात यूं मरकूम है और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम व करीम मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। आप यूएल नबी का सिफा पढ़ रहे हैं सर? 12वीं आयत से। अच्छा, आप दोबारा से शुरू करें, कोई बात नहीं, आप 12वीं आयत से शुरू करें। सॉरी, दूसरा बात 12वीं आयत। लेकिन खुदा फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और क्रियादारी और मातम करते हुए मेरी तरफ मुतवज्जो हो, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाह करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नज़र की कुर्बानी और तपावन हो। सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफल फ्राहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर खानों को भी फ्राहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल। काहिन यानी खुदा के खादिम ड्यूटी और कुर्बान गाह के दरमियान क्रिया और जारी करें और कहें, आए खुदावन अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मेराज की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें, वो उनके के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। खुदावन अपने कलाम में पढ़े और समझे जाने पर बख्शे। आमीन। आए हम गीत नंबर 140 दिल के दाग को धोए और लहू जो के क्रूस से जाए।
कलाम सुने। एक दफा वो कर दो। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील छठा बाब 16वीं आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है न जंग और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदा की बरकत के कलाम के पढ़े और सुने जाने। आमीन। शायदबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 8 निकालें। सभी से अपने ईमान का इकरार करेंगे। शायदबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 8 सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का दिलकश बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, औलादों से बेशतर, अपने बाप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बाप का एक ही जगत है। उसके वसीला से जो चीज़ें बनी वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और उसकी कुदरत से कमवाई मरीम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और उसके हाथ में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, सब बोले, और आसमान पर चढ़ गया, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, जो खुदा को जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सागर है, उसकी बाप और बेटे के साथ ताज़ीम होती है। वो नबी की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम सूरी की सबक ईमान रखता हूँ, मैं एक वक्त का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और ऐदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बात हमारी आजिज़ी इंकिसारी हलीमी फरोतनी के साथ रह चुप कर तो इल्तिजा फरियाद मिन्नत करते हैं। अपने बातों की रहनुमाई में हमें इस लेंट सीजन को, सलीबी दुखों को समझने के लिए अक्ल दानिश शर्फ रहमत फरमा। अपने खादम के मुंह में अपना कलाम डाल। तेरे लोग आज के कलाम के वसीले से तुझे शख्सी तौर पर जानकर तेरे दुखों में शरीक होते हुए निजात की तरफ लौटे। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से जमात बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको वेलकम करता हूँ। आप सबको देखकर खुश हूँ कि आप लोग इस खास इबादत में हम्द सना के लिए, शुक्रगुजारी के लिए और अपनी शख्सी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए, क्योंकि आज से जो रोज़ों के ये अय्याम हैं जिन्हें हम लेंट सीजन कहते हैं, मैं पूछना ये चाहता हूँ, कोई भी मुझे बताए, मुझे अच्छा भी लगेगा, मैं खुश हूँगा कि लेंट सीजन है क्या। कोई बता सकता खड़ा हो? शाबाश, बोले बोले।
लेंट है क्या, ताकि मैं इस लफ्ज को ज्यादा इस्तेमाल ना करूं, मैं इसका आसान लफ्ज इस्तेमाल करूं। ये लेंट चूंकि अंग्रेजी लफ्ज है और इसका मतलब जो है वो इन 40 रोजों को जाहिर करता है। अब दूसरा सवाल यहां पे ये है कि बुध वाले दिन क्यों शुरू होते हैं रोजे? ठीक है, आगे पीछे तो हो सकते हैं। फिर हमने ये देखना है कि 46 डेज ईस्टर तक हैं और ये दिन हर साल फर्क होता है, तारीख फर्क होती है, इस पे गौर करना है। इन सारी बातों को समझने के लिए, सीखने के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी हो गया कि आप जुमे की इबादत में आकर अपने सवाल अपने साथ लाया करें। फिर हम उस शाम सवालों के जवाब दिया करें कि ये लेंट सीजन, रोजों के अय्याम, आसान लफ्जों में हम इसे क्या कह सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफर के दिन हैं। आज से खुदावंद यीशु मसीह का जो सलीबी सफर था शुरू हो गया था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश हुई। मुझ पर और आप पर भी बड़ी आजमाइशें आती हैं। मैं और आप डमाडोल हो जाते हैं, मैं और आप घबरा जाते हैं, लेकिन आज से मैं आज के दिन की बात करूंगा, बाकी सवालों के जवाब बाद में। आज का दिन जो है इसको क्या कहते हैं? राख का बुध। पूरी दुनिया में यही लफ्ज है, ऐश वेडनेसडे। लेकिन मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा तब्दील कर, आसान कर। राख का बुध नहीं है, बुध ने बेचारे ने क्या राख बनाया, इसको अपने ऊपर ले ले। राख होने का बुध है, राख होने का दिन है ये। मैंने और आपने राख होना है, जो हम नहीं होते। अब राख का जो लफ्ज है तो बड़ा सख्त सा लफ्ज है। अगर किसी को बहुत ज्यादा दुख देना हो, किसी की बेइज्जती करनी हो, किसी की इंसल्ट करनी हो, किसी को पस्त करना हो, किसी को जलील करना हो, तो लोग कहते हैं इसके सर पर कितने चूलों का सख्त क्या डाल दे? स्वा। राख का मतलब क्या है? आप समझ गए होंगे, है ना? स्वा, हाँ, खाक, राख। खाक मिट्टिया, जो राख है ये स्वा है। जिस किसी को सजा देनी हो, जिसको पस्त करना है, इंसल्ट करना। और यहां पे रूहानी मतलब इसका राख का यही है कि मुझे और आपको राख होना। राख का बुध, राख होने का बुध, राख होने का दिन। आए आप अपने आप को राख बनाए। किस तरह बना सकते हैं? चंद अल्फाज सादा सादा मैंने भी सीखे हैं। कुरान में लिखा, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तूने औरों से नहीं सीखी। मैंने इस तरह सीखा। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक ये बातें पहुंचाऊं। साल से हम ये बुध की इबादत करते हैं, हर साल। पिछले साल भी की थी। पिछले साल जरा थोड़े लोग थे, आज ज्यादा लोग हैं। ठीक है, पिछले साल हमने 300 डब्बों का इंतजाम किया था, इस साल हमने 400 का कर लिया, क्योंकि मेरी इंतजामिया जो है वो इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि चीजें कम ना। आप लोगों से दरखास्त की जाती है, ये दिन जिनका आगाज आपके चर्च के लोग, आपकी इंतजामिया मोहब्बत, प्यार, खुशी के साथ इनका आगाज करते हैं। आप इन दिनों में अपने आप को सरतपा मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शरीक कर दें। अब योएल नबी का सहीफा
और ये हवाला बहुत दफा आपने सुना पड़ा है, लेकिन आज मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये लिखा क्यों गया? योएल नबी ने क्यों ये बातें की? वजह क्या थी? सबब क्या था? क्यों खुदा ने इसकी जिम्मेदारी निकाली? कितने लोगों से कहा कि वो रोजा रखें और सच्चे दिल से रखें, क्या जरूरत पड़ गई थी? इसलिए कि हालात ठीक नहीं थे, मुश्किल थी, परेशानी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, काल पड़ा हुआ था। टिड्डी दल की वजह से तमाम पैदावार और खुराक खत्म हो चुकी थी और लोग परेशान थे। आज भी लोग परेशान हैं, महंगाई भी ज्यादा है, खुराक की भी कमी है। उसकी वजह क्या है? कारोबार ठीक नहीं चल रहे लोग। इसलिए आज का दिन, आज का वक्त और उस दिन को याद रखें। अब दूसरा सवाल, राख क्यों सर पे लगाए, क्यों माथे पे लगाए? ये एक सिंबल है, अलामत है कि इंसान तू खाक है, तू राख है और फिर तू खाक में ही लौट जाएगा। अब इसका यीशु मसीह के साथ क्या ताल्लुक है भाई? देखना तो हमने ये है, यीशु मसीह के साथ इसका खास ताल्लुक ये है कि उसने मेरे लिए और आपके लिए, मेरी निजात के लिए, आपकी निजात के लिए ये दुख सहे, और ताकि मैं और आप भी इन दुखों में से गुजरें। अब जब आंसू आते हैं ना, मैं और आप जब रोते हैं तो रोने से आंखें भी साफ हो जाती हैं और रोने से दिल भी साफ हो जाता है। रोने से आंखें भी साफ और दिल भी। तो इस सीजन में, सलीबी सफर के दिनों में, यीशु के दुखी दिनों के दिनों में, जब खुदावंद यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए दुख उठाना पड़ा, मेरा और आपका कर्ज उसने चुका दिया। दुख मुझे उठाने चाहिए, गुनाह मेरा और दुख मसीह ने उठाया। तो हमने उसके दुखों में शरीक होना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन सवालों के जवाब बहुत सारे हैं। सादा सा बताना चाहता हूं कि जब 40 दिन ये गुजर जाते हैं, फिर जुमेरात का दिन आता है, फिर गुड फ्राइडे आता है, फिर ये कपड़ों का कलर भी बदल जाता है। अभी ये जो कलर है, ये तौबा की निशानी का कलर है। हमारे अंदर तब्दीली आए, हम कोशिश करें कि हमारी सोच में तब्दीली आ जाए, हमारे रवैयों में तब्दीली आ जाए, हमारी गुफ्तगू में तब्दीली आ जाए, हमारे चाल चलन में तब्दीली आ जाए। हमारे अंदर की वो जितनी कड़वाहटें हैं, जो नफरत है, वो खत्म हो जाए, हमारे अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाए। लेट सीजन, मौसम बहार, यीशु मसीह के सलीबी सफर का दिन, और जब ये कलर तब्दील होके फिर ईस्टर वाले दिन ये वाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है। मेरा दिल पापा दे नाल होया सी काला काला, नजर जनावन लगा मेरा दिल, यीशु दे महंगे लहू ने धोके कर ऐसा दिता जिवें है बर्फ चिट्टी चिट्टा कर। सो मैं ये बताना चाहता हूं कि हर साल क्यों बुध की शाम हम इबादत करते हैं, बुध से नेक्स्ट सीजन का आगाज कर लेते हैं, दुखों में से गुजरते हैं, और बहुत सारे लोग 40 दिन खाकसारी में बैठकर गुजारते हैं। कई लोग 40 दिन का रोजा रखते हैं, पूरे 40 दिन मैं और आप नहीं रख सकते। ये वो लोग हैं जो सरगार में, जो इबादत खाना में बैठते हैं, रोजे में रहते हैं और अपने आप को हलीम कर लेते हैं। फिर उनकी जिंदगी में तब्दीली आती है और वही चीज ईस्टर में जाकर
खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की जब हम ईद मनाते हैं तो फिर वही चीज जो है उसको वो खूबसूरती में बदल जाती है। फिर हम खुशी के साथ नारे लगाते हैं। सादा मिसाल दे रहे हैं, शादी से पहले पिछले दिनों में बड़ी शादियां हुई हैं, इसलिए मैं शादी की मिसाल दे रहा हूं। आजकल मॉडर्न दौर है, लेकिन पिछले चंद साल छोड़ दें तो जो घर वाले होते थे ना, लड़के वाले, वो लड़के को कहते थे कि आप कुछ दिन आपने ज्यादा नहाना धोना नहीं है, मुंह नहीं धोना, ठीक है। इसी तरह लड़की को, दुल्हन को वो कहते थे कि आप ज्यादा आपने नहाना धोना नहीं है। क्यों? वो उतने ही दिन जब नहाती धोती नहीं थी, मुंह नहीं धोती थी, बाल नहीं साफ करती थी, लड़का नहीं करता था, तो फिर वो कहते थे कि क्योंकि उस दिन फिर तेरे रूप ज्यादा चढ़ेगा। ये बात है, ये नौजवान सुने, मॉडर्न बच्चे आजकल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी बातें, सादा बातें, कि फिर उस दिन ज्यादा रूप चढ़ेगा। अब दुखों में से जब बंदा, कोई शख्स गुजर जाता है, फिर दुखों में से गुजर कर फिर वो खूबसूरत हो जाता है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। अब जो खुदा यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। उसमें कोई नहीं लिखा कि किस डिनोमिनेशन का, नो, जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। और पौलुस रसूल भी बड़ी दलेरी के साथ कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। ये खूबसूरती, ये रूप चढ़ना, और रूप से पहले गंदाना, रूप से पहले सर में खाप डाल लेना। मैं अगर मेरे पास ये अख्तियार नहीं है तो ये राख जो है ना, बजाय थोड़ी सी लगाने से, मैं तो कहता हूं कि ज्यादा डाली जाए। जिस तरह पहले दाऊद के दौर में, आसर के दौर में ये हुआ, और यहाँ कलाम में भी है, मैं पढ़ लूँ ताकि कहीं कुछ लोग जो बैठे हैं वो ये ना समझे कि शायद फादी साहब अपने पास से ये बात कर रहे हैं। सुने, बाइबल में जो हवाला अभी हमने पढ़ा है वहां पे लिखा है, अब इस वक्त खुदा फरमाता है, अब पूरे दिल से, सच्चे दिल से, अच्छे इरादे से। अच्छा काम करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती भाई बहनों, हम इंतजार करते रहते हैं, पैसे कोई नहीं। अच्छा काम करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, अच्छा काम करने के लिए अच्छे इरादे की जरूरत होती है, अच्छे जज्बे की जरूरत होती है। यो इन लोगों से कहता है, आप पूरे दिल से रोजा रखकर और गिरे आजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। मातम करते हुए, रोते चलाते हुए, खाक डालते हुए, अपने आप को पस्त करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। और आगे कहता है कि अपने कपड़ों को नहीं सिर्फ फाड़ो, दिलों को चाह करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। उन लोगों पर अजाब आने वाला था और अभी निशानियां शुरू हुई थी अजाब की। हमारे यहां भी अजाब शुरू हुआ है। इसलिए आज इस वक्त, इन दिनों में, इस सीजन में, 2021 के साल में जरूरी हो गया मेरे लिए और आपके लिए। पिछले साल हमने ईस्टर नहीं सही तरह से मनाई, सनराइज सर्विस में हम घर के लोग थे, 5 लोग बस बाहर जज्बात, ठीक है। अब आज इस वक्त इस साल ऐ लोगों, सच्चे दिल से, पूरे दिल से रोजा रखकर मेरी तरफ रुजू लाओ, अपने कपड़ों को नहीं, दिलों को चाह करके खुदा अपने खुदा की तरफ मतवज्जो, ताकि खुदा हम सब पर, इस मुल्क पर, दुनिया पर रहम करे, क्योंकि वो रहीम करीम खुदा है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदा तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावत। आज आपने यहां से
عہد کر کے جانا ہے جو وعدہ آپ نے کیا, کیونکہ آگے وعدے والی آیت آ رہی ہے. صیون میں نرسنگا پھونکو, روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو, مقدس محفل فراہم کرو. دنیا محفل ناسی بڑی کرتے ہیں, میں بڑا شکیر ہوں محفل کا, صحیح ہے آپ کرتا. اس کے لیے مقدس محفل کا انتظام کرو, اور یہ اس وقت ہوگی جب ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ ہم نے سیکھنا بھی ہے, تبدیل بھی ہونا ہے, اور ہمارے اندر تبدیلی بھی ہے, بندگی کا بھی عنصر ہو, اور وعدہ بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہی تو ہے تے واؤ بے, تین ہے نا, تے سے تبدیلی, واؤ سے وعدہ, اور بے سے بندگی. سادہ سادہ الفاظ ہے, مشکل بات نہیں ہے. اور اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے تم لوگوں کو جمع کرو, جماعت کو مقدس کرو, بزرگوں کو اکٹھا کرو, بچوں اور شیرخواروں کو فراہم کرو. دلہا اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے. نئے شادی شدہ جوڑوں کو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بھی مل کر, ہمارے ساتھ مل کر, خدا ان کی حضوری میں گر کر, سچے دل سے, پورے دل سے, اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے خدا یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہو کر اپنی زندگی میں تبدیلی لائے, تو خدا کا غضب نہیں آئے گا, خدا باز آئے گا. دیکھیں یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے, ہم کسی کو کہتے ہیں باز آ بھی, باز آ, اب لگا یہ کام, تو خدا خود ہی میری اور آپ کی شخصی, خاندانی, کلیسائی, روحانی زندگی کو دیکھ کر عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. آج میں اور آپ ان دکھوں سے گزرتے ہوئے عہد کریں کہ ہم مقدس محفل فراہم کرتے رہیں. داؤد کو کیا ہوا تھا, اس نے کیوں خاک ڈالی تھی؟ دانیل کو کیا ہوا تھا, اس نے اپنے سر پہ خاک ڈالی, ٹاٹ اوڑھ لیا اور بیٹھ گیا. دانیل اتنا بڑا خدا کا بندہ جس کو خدا نے شیروں کی مان سے بھی باہر نکال دیا, جس کو خدا نے آگ کی بھٹی سے بھی باہر نکال دیا, انسان ہی تھا نا میری طرح کا, آپ کی طرح کا. آج بھی وہی حالات ہے, مشکل وقت ہے. آپ کے ساتھ آپ کے علاقے میں ماڈل ٹاؤن میں 2 نوجوانوں پر گستاخی مذہب کا کیس بنا ہے. سن لیں, میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, پتہ ہے آپ کو روٹس کا نہیں پتا ہوتا. کئی دفعہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے, کئی دفعہ دوسرے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے, لیکن یہ عذاب ہے, یہ مشکل ہے. اب آپ ایسے حالات میں اس طرح سے بات گفتگو نہیں کر سکتے. آج سے 35 سال پہلے میں خود مسیحی لٹریچر بازاروں میں بانٹتا رہا. میلے جب لگتے تھے, آج کل میلوں کی کمی ہو گئی ہے کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں. حسن ابدال ایک میلہ لگتا تھا ہر سال, وہاں جا کے ہم مسیحی لٹریچر تقسیم کرتے تھے. بازاروں میں, مارکیٹ میں جا کر لوگوں کو لٹریچر دیتے تھے, نجات کا پیغام دیتے تھے. اس وقت حالات فرق تھے بھائی, آج حالات فرق ہے. آپ کو جیسے آپ طرز زندگی کو بدل رہے ہیں نا, معیار زندگی کو بلند کر رہے ہیں, اسی طرح سے اب آپ کو سوچ میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی, ہر کام میں تبدیلی لانی پڑے گی, گفتگو کرنے میں. اب آپ اپنی زبان سے, اپنی چال چلن سے لوگوں کو مسیح کے پاس لا سکتے ہیں, پکڑ کے نہیں. میری بات سمجھے, عذاب ہے, آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیوں آپ برے بندے کو برا کہتے ہیں. بھائی میں کہیں بھول نہ جاؤں یہ فکرہ, کہتے ہیں کہ انے نو انا نہ کھیے, ہے نا, اس طرح کی بات ہے نا, بلکہ اس کو پیار سے, محبت سے پاس بٹھا کے اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ آپ کی آنکھ خراب کیسے ہوئی, تو پھر وہ برا نہیں منائے گا. ہے وہ نا
देख नहीं सकता, लेकिन आपका स्टाइल ठीक होना चाहिए पूछने का, बेइज्जती वाला स्टाइल नहीं होना चाहिए। आप लोग कहते हैं जी सच्ची बात कड़वी होती है, कड़वी नहीं होती, आपके बताने का तरीका कड़वा होता है, आपकी वो बात करने और कहने का तरीका कड़वा होता है। आप उसमें मिठास पैदा करें। राख का बुद्ध, राख होने का बुद्ध है। मुझे और आपको अपने आप को हलीम होने के दिनों में खुदा गुजारता है। दानिएल भी इकरार कर लेता है, दाऊद भी इकरार कर लेता है, आस्तर भी इकरार कर लेती है। मेरी और आपकी ये खूबियां इकरार नहीं करते, हम तस्लीम नहीं करते। इकरार करना पड़ेगा। क्या बात है जी? दानिएल कहता है हमने गुनाह किया, मेरे बाप दादा ने गुनाह किया। मैं कहूंगा ना तो मेरे वो दूसरे साथी ने कह रहा अपने बाबा को गलत कह रहे। हाँ, वो कहता दानिएल मेरे बाप दादा, हमारे बाप दादा ने भी गुनाह किया, हमसे भी खता हुई, हमने बगावत की, हमने शरारत की। आज भी हम हमारे दरमियान, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में, हमारी बरादरी में, हमारे चर्चेज में, हमारी कलीसियाओं में आज भी शरारती लोग मौजूद हैं, जिसकी वजह से अज़ाब नाज़िल होता है, जिसकी वजह से गड़बड़ होती है। और जो ऐसा करते हैं खुदा उनका घर भी ढा देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए आज का दिन, रोजों का पहला दिन, आए अपने आप को मुकद्दस करें, क्योंकि जब मैं और आप मुकम्मल तौर पे अपनी जिंदगी को उसके हाथ में दे देते हैं ना, फिर तब्दीली आती है। दिखावे के लिए नहीं। मत्ती रसूल अब अंजील जो अभी पढ़ी गई है ना, मत्ती रसूल के अंजीली बयान से कि रोजा जब भी आप रोजा रखें तो इस तरह से करें, मैं उसको सादगी से बयान करता हूं कि दिखावे के लिए ना करें। दुनिया में हम अपने घर में, अपने खानदान में, बड़ी सादा सी बात है, शायद आप बुरा भी मनाते हैं तो बनाए, कोई बात नहीं। ये फिक्रा हम कहते हैं तेरी मेरी एक जिंदड़ी, कहते हैं, कभी सुना जरा? तेरी मेरी एक जिंदड़ी, यानी कि मेरी और आपकी जिंदगी एक है। तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेनू ताप चढ़े ते मैं हूंगा। भाई बुखार तुझको चढ़ा हुआ है, तकलीफ में तू है, लेकिन मुझे दर्द हो रही है, मुझे दर्द हो रही है। ये जो बुजुर्ग माएँ बैठी हैं, मुझे दुरुस्त करे, मैं गलत तो नहीं कह रहा कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी ताप तेनू चढ़े ते मैं हूंगा। मैं परेशान हूं, तकलीफ मुझे है। और इसके साथ अगला एक छोटा सा वो फिक्र है कि उधर ठंड पड़े, ठार इधर से अमरीका से बर्फबारी बड़ी हो रही है, उत्थे बर्फबारी हुए तो असी इतने बैठ के ठहरिए। तेरी मेरी एक जिंदगी, मेरी तो यीशु की ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। वो दुखों में से गुजरा है, मैं और आप भी दुखों में से गुजरे, और मैं और आप उसके दुख को समझे, महसूस करें, उसमें से गुजरे और अपने आप को गुजारें। फिर देखें आपकी जिंदगी में किस तरह से तब्दीली आती है। राख का बुद्ध है, राख हो जाना, अपने आप को पस्त कर लेना, अपने आप को हलीम बना लेना, अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके हाथों में दे देना। ये लेंट सीजन है। आए मैं आप इन दिनों में अगर रोजा नहीं ना रख सकते, कोई बात नहीं, ना रखें रोजा, कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अपने मुंह में तो कंट्रोल कर लें, मुंह तो बंद कर लें, चुगली करने से तो इसको बंद कर लें, गलत अल्फाज इस्तेमाल करने से तो बंद कर लें। यह है रोजा, आंख का रोजा, कान का रोजा, मुंह का रोजा, जबान का रोजा। और सख्त बात, इंटरनेट पे रोजा रख लो, बड़ा घर में मुश्किल पैदा हो जाती है, इंटरनेट नहीं आता होता तो पैसे इकट्ठे करके कहते दो यार छेती चले। इस साल ऐद कर लें, ये जो गजब आ रहा है, ये जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, इनको खत्म करने के लिए मुझे और आपको आजिज बनना पड़ेगा। आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी और फरोतनी इख्तियार करनी
गुजरना पड़ेगा। थोड़ी देर अपने आप को दुखों में से गुजार कर देखें कितना मजा है इसमें। फिर खुशी देखें, वो खुशी जिसकी जड़ें दुख में हो ना, वो खुशी ऐसे। और जिस खुशी की जड़ें दुख में ना, वो खुशी नहीं होती। आए मेरा खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी इस सफर में, ये 46 डेज है, 40 दिन, इसमें से 6 निकल जाएंगे संडे के दिन, 40 दिन आ जाएंगे। इन 40 दिनों में जुमे की शाम जो इबादत वगैरह की, इसलिए आपके सवालों के जवाब दिया करूँगा। आप अपने सवाल लेके आना जरूर, ताकि बैठ के या खड़े होके एक दूसरे की मदद कर सकें। 40 दिन का मैं जब रोजा कह रहा था, तो मैं और आप भी 40 दिन का रोजा रखते हैं। ये ऑर्थोडॉक्स लोग रखते हैं जो खुदा के घर में बैठे रहते हैं, दुआ करते रहते हैं और अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके हाथों में दे देते हैं। खुदा करे मैं और आप भी ऐसा कर सकें, मैं और आप अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकें, ताकि हमारे खानदानों के हालात दुरुस्त हों, हमारे मोहल्लों के दुरुस्त हों, हमारी कलीसियों के दुरुस्त हों, और लोग एक दूसरे को समझ सकें। हमारे अंदर एहसास पैदा हो कि हम एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे के लिए बढ़ते चाहें। ये मीना मेरे लिए और आपके लिए बरकतों का सबब है। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आए हम खुदा की हम 2 तारीफ करें। 51 ज़बूर है। ये जो ज़बूर है ना, ये मुझे आपको सिखाता है। फजल ना लाया बख्शुना सब मेरे, मैनू कर तू पास। आए मैं और आप इस लेंट सीजन में अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके हाथों में दे, ताकि वो मेरी और आपकी सफाई कर सके सही तरीके से। फजल ना लाया बख्शुना सब मेरे।
पैसे दे के तकदीस कर देने वालों को बरकत दे, जिनके घरों में किसी चीज़ की कमी ना आने पाए, ढेरों खुशियाँ दे। और नेक्स्ट सीजन में हम सबको आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी और फरोतनी की रुता फरमा। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम से जमायत बैठ जाए। शहरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 14। आइए सो अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने रूह कुद्दूस के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैच की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आज यीशु की रूह में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप कादिर वतुलबर अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दीदा खुदा की सुनसी के लिए, सलीबी दुखों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस मुल्क को, मुल्क के हाकिमों को भी याद करते और करते हैं। डायस ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, तमाम अदारों के लिए, सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और बखला फरिश्तों बोले सब बोले कद्दूस 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 खुदावंद रब फाज। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने क्लोदे बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत द्वारा करेगा। उसने इस पर अपने आप को एक ही बार नजर चाहकर कुल जवान के गुनाहों की पूरी कामल और काफ़ी करवाड़ी नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी की याद करके हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूं तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहत का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने किसी को माफ़ करते हैं, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाही और कुदरत जलाल हमेशा करते रहे हैं। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर करें। खुदा हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी कुदरत और बड़े नाम पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं क्योंकि तेरी मेज़ पर सिगरते हुए चले, लेकिन वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इस लायक के लिए खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह जिस्म में इसकी नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाए और हम उसमें तो हमें हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है।
आए हम भी एक दूसरे को बरकत की दुआ दें और एक दूसरे के लिए इत्मीनान मांगे और कहें खुदा आपको इत्मीनान दे, खुदा आपको बरकत दे। बड़ी तरतीब के साथ आप इस साइड के लोग इस साइड पे आएंगे और इस साइड के लोग इस तरफ।
जो लोग शायरबानी में शरीक होना चाहते हैं, अभी मौका है। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते अपना हाथ दिखाएं ताकि हम आपकी खिदमत के लिए आपके पास आ सकें। जो लोग शायरबानी में शरीक होना चाहते हैं, अभी मौका है। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आइए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें और कहें, कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत पेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेहत किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजराते हैं, ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हमेशा उनके हम शक्ल ना बने, बल्कि अपने हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाह में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और रूह कुद्दस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल्लाबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तंजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हुई। आमीन। जमात बैठी रहे, चूँकि आप सबके लिए खाने का इंतज़ाम है। जहाँ आप बैठे हुए हैं, आपके पास यहीं पे बॉक्स आ जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप तरतीब से बैठे रहें। दूसरी बात यह है जो बड़ी अहम है, एक दूसरे के साथ हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे के साथ गले ना मिलें। अभी कोरोना वायरस और तेज़ हुआ है। मैं आपको बोलते हुए दरखास्त करना चाहता हूँ, थोड़ा मोहतात हूँ, परहेज करें। मैं दूध रहेंगे तो मैं खुद रहेंगे, ठीक है। हाथ मिलाने से ग्रेज करें, बहुत करीब बैठने से ग्रेज करें, गले मिलने से ग्रेज करें। और अच्छा है कि जब आप जाते हैं तो फिर जल्दी से आस्ता आस्ता निकले ताकि इकट्ठे न खड़े। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।
जब तक डब्बे नहीं ना मिले तब तक बैठे रहे, जब डब्बे मिल गए फिर उठ के चलना शुरू कर दिया। राय मेहरबानी कलमाते बरकत तक रुका करें शहरबाजी के खिलाफ। आए हम दुआ मांगे इंतजामिया के लिए भी खुदा का शुक्र करें। आसमानी बाप इंतजामिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने तेरे लोगों के लिए ये खुराक तैयार की। दुआ करते हैं खुदा उनको अपना हाथ बढ़ा, इन सबको प्यार मोहब्बत सब्र बर्दाश्त की तो फरमा और तेरे लोग बरकत रहकर सलामती के साथ रुक सके। हमारी दुआ को सुन, दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं। आए हम सब अपने पाँव पे खड़े हों कलमाते बरकत के लिए। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मुद्रिक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह की बरकत हम सबों पर, हम सब के तमाम अजीज़ कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ और पैरामेडिकल के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से।